stative verb, right? Am I visible? मेरा चेहरा आ रहा है? दिख रहा है आपको? Okay, right. So before we know about passive tenses, we must know about some of the verbs, types of verbs. That is called dynamic verb. Dynamic means, right, is also known as action verbs. Dynamic verbs are action verbs, nothing else but action verbs, right? And it describes actions and processes or activities that can be observed or measured. This is what the uh, purpose of categorizing it. They convey the idea of an action in progress and are typically used in continuous tenses. ठीक है, ये डायनामिक जो है ना कंटिन्यूस टेंसेस में भी ये हो सकता है. जैसे शी इज रनिंग अ मैराथन, द वर्ब रनिंग इज डायनामिक, right? That it is an ongoing action. They are playing soccer. So in this sentence we can say that playing describes an active and observable activity. You can see people that they are in action, and they are also, we can also observe them. He was repairing the car yesterday. I have seen him, he was repairing the car yesterday. Right? So dynamic verb repairing is an action in progress. Now, this is all about dynamic, right? Dynamic जो है तो सारे verb का मतलब आप action में देख सकते हो उनको और उनको observe भी कर सकते हो. Right? So this is called dynamic. Stative verb क्या होते हैं यहाँ पर? Stative verbs tell about describe states. State means state of being, like I'm happy, I'm sad, right? State of condition, state of feeling, or situations that are not actions or processes. वो ना तो action है ना ही process है. They express a static condition rather than an action, and are not used in continuous tenses. Like she knows the answer. You cannot say that she is knowing the answer, right? You cannot use it in continuous, right? She knows the answer, right? It is a condition of knowledge. Like she is a person who has answer in her mind, who has answer in her mind, right? She has answer, so she has idea what is the answer of this question is. She knows. He loves chocolates. He loves chocolates. So this is, it is a feeling or state of affection. She has an affection about chocolate. He loves chocolates. अभी कोई जरूरी थोड़ी है कि शी ही लव करेगी. ही को भी चॉकलेट पसंद होते हैं भाई. ठीक है. सो इसका क्या है? whenever he will see chocolates, एक चॉकलेट बार अगर ये देखेगा, right, तो क्या होगा? He will be willing to eat that chocolate bar. तो राइट, इसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी. ही विल बी हैप्पी. हाँ, राइट, चॉकलेट, आई वांट टू ईट दैट. राइट, कैन समबडी गिव मी चॉकलेट? वाओ. ठीक है. सो ही हैज अफेक्शन फॉर अ चॉकलेट. ओके, राइट. सो दे ओन अ ब्यूटिफुल हाउस. दे ओन का मतलब क्या हुआ? उनका ओनरशिप है. इसके अंदर कोई एक्शन तो नहीं है. इसके अंदर तो इट्स पोजीशन है. दे ओन अ ब्यूटीफुल हाउस, दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, राइट. तो ये कीजिए कि कुछ वर्ब्स जो होते हैं ना वो डायनामिक और स्टेटिव होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. जैसे आई हैव अ कार, दिस इज स्टेटिव. इट इंडिकेट्स पोजीशन. बट आई एम हैविंग लंच, राइट. इसका मतलब क्या है? ये डायनामिक है, एक्शन है. एक्शन ऑफ ईटिंग इज बीइंग डन. ठीक है. एक्शन ऑफ ईटिंग, यहाँ पर सामने प्लेट रखा हुआ है. प्लेट के अंदर जो है सो दाल है, रोटी है, सब्जी है, चावल है, सलाद है. एंड ये क्या कर रहा है? ये बैठा हुआ है और ये यहाँ से लेके और मुंह में लेके च्यू कर रहा है. ठीक है. तो ये खाना खा रहा है, खाना खा रहा है. ठीक है. तो ही इज ईटिंग. तो एक्शन चल रहा है, लेके खाने की एक्शन चल रहा है. तो ये यहाँ पर डायनेमिक हो गया और स्टेटिव हो गया डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. अभी जब हम डायनेमिक और स्टेटिव को समझ लिए तो हमें ये समझना होगा कि वर्ब्स जो होते हैं वो डायनामिक और स्टेटिव के साथ साथ
ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी होते हैं ना। ट्रांजिटिव का मतलब हम समझते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब्स are the verbs that require a direct object to complete their meanings। अभी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। जैसे, ठीक है, ये ए है, ये एक्शन हो रहा है, राइट, और ये बी है, ठीक है। तो एक्शन का डायरेक्ट असर इसके ऊपर पड़ रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं आई ईट एन एप्पल in afternoon. In afternoon. I eat an apple in afternoon. मैं आफ्टरनून में एक एप्पल खाता हूँ। आई ईट एन एप्पल इन आफ्टरनून। तो राइट, मैं रोज एक एप्पल खाता हूँ। तो ईट का डायरेक्ट एप क्या हो गया? डायरेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे क्या है कि एक एक्शन जो है ना, एक एक्शन और ऑब्जेक्ट के बीच में कई बार आप देखेंगे कि एक प्रीपोजिशन आ जाता है। बीच के अंदर क्या होगा? यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लगेगा, एक प्रीपोजिशन लगता है, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है? व्हाट इज अ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स which comes, which takes its place after the verb। ये क्या होता है? आफ्टर द वर्ब होता है, आफ्टर द वर्ब, एंड before and before a noun or pronoun to tell the relation of this noun and pronoun with the rest of the part of the sentence, right। सब्जेक्ट के साथ ये वाले नाउन या प्रोनाउन का क्या रिलेशन है वो बताने के लिए हमें कई बार यहाँ पर एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है। दिस प्रेपोजिशन इज यूज लाइक आई वेंट टू मार्केट yesterday। I went to market yesterday। मैं कल मार्केट गया था। अब यहाँ पे देखिए, ये मार्केट जो है ये एक नाउन है, दिस इज अ नाउन। इससे पहले क्या हो गया? टू लग गया। आई वेंट टू मार्केट yesterday। तो अब ये टू जो लग गया, ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है, दिस इज अ प्रेपोजिशन। अब ये जो है ना, आई वेंट टू, आई वेंट मार्केट यस्टरडे आप बोल ही नहीं सकते, वो गलत हो जाएगा। आई वेंट मार्केट, ऐसा जब आप बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक टू लगना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। और आई टॉक्ड, आई टॉक्ड टू माई बॉस, आई टॉक्ड टू माई बॉस रिगार्डिंग दिस इशू। अब यहाँ पे देखिए, टू के बिना ये सेंटेंस बन ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट टू। ये टू यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। दिस टू हैज टू बी हैव हियर, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग सेंटेंस। तो इसीलिए क्या है ना, इसको क्या कहा जाता है? राइट, ये माई बॉस है, आई टॉक्ड माई बॉस, ऐसा आप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। आई वेंट मार्केट, ये ऐसा आप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। आई वेंट टू मार्केट, आपको यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। आई टॉक्ड टू माई बॉस, ठीक है। सो इसका ख्याल रखना है। अभी इसमें जो है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ए का क्या है? ए से एक्शन जो है, ए फॉर एक्शन, और बी जो ऑब्जेक्ट है या नाउन या प्रोनाउन है, इसके बीच में रिलेशन बनाने के लिए जो एक गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए हमें एक प्रेपोजिशन की जरूरत होती है। तो जब ये प्रेपोजिशन हमें लगेगा ही लगेगा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। ये वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल आपको दिया, आई ईट एन एप्पल इन आफ्टरनून, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस और बताता हूँ आपको। आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट yesterday and ate pizza, राइट। तो ये क्या हो गया? मैं मार्केट गया और मैंने वहां क्या किया?
मैंने वहां एक पिज्जा खाया। तो अब यहाँ पे देखिए किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। आई एट पिज्जा, प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं। तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। और यही अगर हम देखें इस सेंटेंस के अंदर, तो आई वेंट टू, तो यहाँ आपको बिना प्रीपोजिशन के नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर जो है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, राइट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मार्केट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मार्केट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज पिज्जा, आई एट पिज्जा, ठीक है। आई कॉल माई बॉस एंड told him entire story। तो अब यहाँ पे देखिए कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगा है, यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगा है, राइट। तो ये क्या है, सब ये माई बॉस क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हिम क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये है नाउन और ये है प्रोनाउन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट काम कर रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब उसी में होता है जहां पर ट्रांसफर ऑफ एक्शन होता है और उसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये अगर आप भूल गए तो मुश्किल में आ जाएंगे, राइट। सो transitive verbs are verbs that require a direct object to complete their meaning. In other words, they transfer the action from the subject to the object. She ate the pizza. Ate is transitive because it acts on the direct object pizza. He wrote a letter. The verb wrote is transitive because it acts on the direct object letter. Right? They built a house. They built a house, right? Because the action, it acts on the direct object house. Intransitive verb क्या होता है? Intransitive verbs are the verbs that do not require a direct object to complete their meaning. They express a complete thought on their own. Like she laughed. She laughed के बाद आपको she laughed at his brother. She laughed at his brother. ऐसा बोल सकते हैं। हालांकि इतने में काफी है, ये सेंटेंस काफी हो गया। शी लाफ्ड, इट गिव्स द एंटायर मीनिंग। लेकिन अगर आप एट हिज ब्रदर बोल दिया तो आपने क्या किया, एक प्रीपोजिशन के साथ इसको यूज किया है, राइट। ही रैन इन द पार्क, ही रैन इन द पार्क। अब देखिए यहाँ पर इन द पार्क, तो इन जो है वो एक प्रेपोजिशन है और फर्दर ऐड कर रहा है। हालांकि इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। दे अराइव्ड, दे अराइव्ड लेट एट नाइट, दे अराइव्ड एट नाइट, दे अराइव्ड एट नाइट, वो रात में आए, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझना बहुत जरूरी है, राइट, इन सेंस ऑफ लर्निंग पैसिव टेंसेस। पैसिव टेंसेस अगर आपको सीखना है तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आज आपको इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब बताया, सो दैट टुमारो आई कैन टेल यू मोर अबाउट पैसिव वर्ब्स। इज दैट ओके, राइट?